ایک پاکستانی کمانڈو کی سرگزشت، پاک فوج کا جوان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک جنگجو کی آپ بیتی، بھارتی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبانے والا گوریلا، ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھو کر بھی نہ گزرا، ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی۔ جمعے کے دن ٹھیک 9 بجے میں کالیوال اور رحمان خیل کو ملانے والے کچے اور پکے راستے کے ملاپ پر کھڑا تھا۔ منظور کے کہنے کے مطابق رضیہ ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلتی تھی۔ میں نے پکے راستے پر مین روڈ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں بہترین قسم کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ یہ وہی قیمتی سوٹ تھا جو شیتل نے انڈیا سے آتے وقت مجھے تحفے میں دیا تھا۔ گو ہمارے علاقے میں اس قسم کا لباس پہننا نہایت برا تصور کیا جاتا ہے، مگر اس وقت یہ میری مجبوری بن گئی تھی۔ عام کپڑوں کی بنسبت رضیہ اس لباس میں مجھ سے زیادہ متاثر ہوتی۔ امجد پکے راستے سے 50-60 گز دور رہ کر میری نگرانی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے چلتے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سفید رنگ کی ایک کار اور اس کے پیچھے کالے رنگ کی جیپ میرے نزدیک پہنچی۔ میں نے لفٹ مانگنے کا اشارہ کیا، یعنی اپنا انگوٹھا کھڑا کر دیا۔ روڈ کے کنارے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی نظر پہلے سے مجھ پر جمی ہوئی تھی اور اس میں میرے 3 پیس سوٹ کے اندر ملبوس ہونے کا گہرا عمل دخل تھا۔ میرا اشارہ دیکھتے ہی اس نے بریک لگائی اور بڑی تیکھی نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، جی۔ میں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ مس، اگر مین روڈ تک لفٹ مل جائے تو۔ اس وقت تک کار کے پیچھے آنے والی جیپ رک گئی تھی اور اس میں سے 2 کلاشنکوف بردار چھلانگ لگا کر بڑی تیزی سے میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ تو ان کی شکلیں کریہ تھیں اور کچھ انہوں نے اپنے چہروں پر تاثرات ایسے سجائے ہوئے تھے کہ سامنے والا بندہ انہیں دیکھ کر ہی ڈر جائے۔ جسمانی لحاظ سے بھی وہ خاصے مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان لاک کرتے ہوئے خوش دلی سے بولے، بیٹھو، اور میں تھینکس کہتے ہوئے اس کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ اس نے ہلکے گلابی کلر کا شلوار سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ بوائے کٹ بال دوپٹے سے بے نیاز نظر آ رہے تھے، جبکہ دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح پڑا ہوا تھا۔ سفید کھلتا ہوا رنگ، ستوا ناک، بھوری آنکھیں، کچھ خوبصورتی، کچھ امارت کا اثر اور اوپر سے جوبن کی بہار نے اسے کافی پرکشش اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے باڈی گارڈ بھی خاموشی سے واپس اپنی جیپ کی جانب مڑ گئے تھے۔ اس دوران امجد کھیتوں سے نکل کر پکے روڈ پر آ گیا تھا۔ اس کا رخ بھی مین روڈ کی جانب تھا۔ وہ سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ گلے میں پڑی مشین گن کو چھپانے کے لیے اس نے پتلی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جسے ہماری زبان میں دھوتی کہتے ہیں۔ کار جیسے ہی امجد سے 5-6 گز کے فاصلے پر پہنچی، میں بوکھلائے لہجے میں بولا، اوہ مس، 1 منٹ کار روکیں۔ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے جلدی میں بریک لگائی اور کار بالکل امجد کے قریب جا کر رک گئی۔ میں نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر عقبی گیٹ ان لاک کیا اور امجد بھی اسی رفتار سے پچھلی نشست پر منتقل ہو گیا۔ وہ جیسے چونکتے ہوئے بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے جیب سے پستول نکال کر اس کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے کہا، اگر زندگی عزیز ہے تو اسی طرح سیدھی آرام سے چلتی رہو۔ اس کے باڈی گارڈز کو کار کے یکدم رکنے اور پھر امجد کے اندر بیٹھنے پر شک سا گزرا تھا کہ وہ بھی جیپ سے اتر کر کار کے قریب آ پہنچے۔ بی بی جی کیا؟ ان میں سے ایک تھوڑا سا جھک کر اپنی بی بی جی سے کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ اسے بی بی جی کی کنپٹی سے لگا ہوا سیاہ رنگ کا 30 بور پستول نظر آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور حیرانی سے مزید کری ہو گیا۔ اوئے خنزیر کا بچہ، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا لہجہ غیظ و غضب سے پر تھا۔ تمہیں یہ جرت بہت مہنگی پڑے گی۔ میں بجائے اسے کوئی جواب دینے کے رضیہ کی کنپٹی پر پستول کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، انہیں کہو واپس اپنی جیپ میں چلے جائیں، اور اگر انہوں نے ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو انہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ بولا، تم جانتے نہیں تم نے کس پر پستول تانا ہوا ہے؟ اس نے گویا مجھے آگاہ کیا، یہ میر نیاز خان کی بیٹی ہے۔ اگر اسے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو تمہیں زمین پر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں باڈی گارڈ کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے رضیہ سے مخاطب ہوا، تم نے سنا نہیں؟ گاڑی آگے بڑھاؤ۔ رضیہ دوسرے گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ آگے کھڑا ہے۔ دوسرا گارڈ کار کے بونٹ کے سامنے کلاشنکوف تانے آن کھڑا ہوا تھا۔ امجد نے کلاشنکوف کاک کرتے ہوئے عقبی کھڑکی سے اس کی مزل باہر نکالی اور دھاڑتے ہوئے بولا، دونوں پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ۔ اس ورنہ کے اندر جو دھمکی پوشیدہ تھی اس سے وہ دونوں ناواقف نہیں تھے، مگر پیچھے ہٹ جانے کی صورت میں بھی ان کے لیے موت ہی تھی کہ انہیں میر نیاز خان کے عتاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی اثنا میں جیپ کا ڈرائیور بھی جیپ سے اتر کر ان کے قریب آ پہنچا۔ امجد خرایا، میرا خیال ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود کلاشنکوف کرخت آواز میں گرجی۔ گولیاں کھڑکی کے
सामने खड़े शख्स की खोपड़ी से चंद इंच ऊपर से गुजरी। वो बेसाख्ता चंद कदम पीछे हट गए। जो इंसानी आवाज से समझने से इनकारी थे, उन्हें गोली की जबान समझ में आ गई। गाड़ी आगे बढ़ाओ। रजिया के बॉडीगार्ड्स के कार के सामने से हटते ही मैंने पिस्तौल से उसकी कनपटी को टहूका देते हुए कहा और उसने होंठ भींचते हुए कार आहिस्ता से आगे बढ़ा दी, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स दौड़कर अपनी जीप की तरफ जाने लगे। उनका इरादा लाजमी तौर पर हमारा ताक़ुब करने का था, मगर उनकी ये हसरत दिल में रह गई, क्योंकि जैसे ही वो जीप में बैठे, अमजद ने पीछे मुड़कर 2 फायर उनकी तरफ दागे और जीप के दोनों अगले टायर धमाके की आवाज के साथ फट गए। मैं पिस्तौल अपनी जेब में डालता हुआ बोला, स्पीड बढ़ाओ, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर उसी रफ्तार से चलती रही। मैंने पीछे मुड़कर उसके गुर्गों की तरफ देखने की कोशिश की, मगर उस वक्त कार एक हल्का सा टर्न लेकर मुड़ गई और रोड के किनारे खड़े दरख्तों की घनी लाइन ने उन्हें मेरी निगाहों से ओझल कर दिया। मैं रजिया से मुखातिब होकर बोला, गाड़ी रोक दो, और उसने खामोशी से गाड़ी रोक दी। मैं फुर्ती से नीचे उतरा और फिर ड्राइवर की समत वाले दरवाजे से आकर रजिया से बोला, साथ वाली सीट पर हो जाओ। वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए खामोशी से साथ वाली सीट पर खिसक गई। मैंने जानबूझकर अमजद को गलत नाम से पुकारा, अब्दुल्ला इसका ख्याल रखना, और अगर ये गलत हरकत करने की कोशिश करे तो मेरी जानिब से खुली छूट है। इसके सर में रोशनदान बना दो या गर्दन में। वो भी उसी लहजे में चहका, आप फिक्र न करें अब्दुर्रहमान भाई, और मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चला गया। चंद मिनट के बाद ही हम मेन रोड पर निकल आए। मैंने शहर का रुख करने की बजाय मुखालिफ समत में कार मोड़ दी। पक्के रोड पर चढ़ते ही मैंने कार नॉर्मल अंदाज में चलानी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से किसी को भी हम पर शक हो सकता था। पहलवान होटल और फिर थाने से गुजरकर मैंने कार कच्चे में उतार ली। उधर से पहले भी ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह का रास्ता बना हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने कार उस कच्चे रास्ते से खेतों के अंदर उतार दी। चने और गंदुम की फसलों की कटाई हो चुकी थी और जाबजा कटी हुई फसलें ढेरों की शक्ल में पड़ी थी। कार हिचकोले लेती हरकत में रही। हम तीनों खामोशी से अपने अपने ख्यालों में गुम थे। जल्द ही हम इस बड़े खुश्क नाले के करीब जा निकले जो हमारे जाने की मुखालिफ समत रहमान खेल के करीब से गुजरता था। कार के अंदर छाई खामोशी को रजिया ने तोड़ा। आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अगर आपका इरादा डैड से तावान वसूल करने का है तो इस सारी तगोदौ की कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ, मैं आपका मुतालबा पूरा किए देती हूँ। अमजद जल्दी से बोला, हमारा मुतालबा तुम्हारा बाप ही पूरा कर सकता है, तुम्हारे बस से ये बाहर है। वो बोली, आप कह कर तो देखें, शायद आप ज्यादा जंजाल में पड़ने से बच जाएं। अमजद जुमानी लहजे में बोला, ये न हो हमारा मुतालबा सुनकर तुम इनकार कर दो। वो पीछे की तरफ गर्दन मोड़ कर अमजद से मुखातिब होकर तीखे लहजे में बोली, मैं रकम के मुतालबे की बात कर रही थी। अमजद उसी लहजे में बोला, मेरी मुराद भी रकम से ही थी, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उसके बेबाक और निडर अंदाज को देखकर हैरान रह गया। लगता नहीं था कि वो मगविया लड़की थी। कोई भी देखने वाला बिला शक व शुबा उसे हमारा क्लास फेलो समझ सकता था। मुझे चंद महीने पहले कही हुई शीतल की बात याद आ गई, जिस वक्त हम दोनों रघु दादा की कैद में थे कि अगवा हो जाने वाले मर्दों को सिर्फ जान का खौफ होता है, जबकि मगविया औरत जान के साथ साथ अपनी इज्जत के खतरे से भी दो चार रहती है। मगर मुझे रजिया के अंदाज में इस किस्म का कोई खौफ झलकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। शायद वो बहुत ज्यादा खुद एतमादी में मुब्तला थी। वैसे आप लोगों ने कमाल कर दिया है, मीर न्याज खान की बेटी को अगवा करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। अमजद शोखी से बोला, हाँ, हमसे इस किस्म के कमालात सरजद होते रहते हैं। बोली, जनाब को डॉक्टर ने मना किया है बोलने से। उसका इशारा मेरी जानिब था। अमजद बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मौसूफ को हसद की बीमारी है। जब भी ये किसी खूबसूरत लड़की को अपने अलावा किसी से घुलते मिलते देखता है तो इसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। ये इसी तरह खामोश रहना पसंद करता है। रजिया उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो कार से बाहर देखते हुए बोली, ये हम जा किस तरफ रहे हैं? इस तरफ तो कोई खास आबादी भी नहीं है। अमजद मजाहिया लहजे में बोला, हम जंगल में मंगल मनाने जा रहे हैं। वो एक बार फिर हंस पड़ी। मुझे लगा कि जैसे वो हंसने के बहाने तलाश कर रही थी। मेरे जहन में मचलता हुआ सवाल होंठों पर आ गया, मिस रजिया, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम दो मर्दों के रहमो करम पर हो और इस वीराने में तुम्हारा मददगार कोई भी नहीं है? वो बोली, डर किस बात का? तुम लोगों की गरज डैड से रकम बटोरना है और डैड के पास काफी रकम है। वो तुम्हें मुंह मांगी रकम अदा करने पर कादिर है। मैं तो यकीन मानो तुम दोनों की कंपनी को एंजॉय कर रही हूँ कि कम से कम 1-2 दिन की पिकनिक सही। दूसरा, मुझे अपनी बात के सच होने की भी खुशी है। मैंने डैड को कहा था कि इन हड हराम बॉडीगार्ड्स का कोई फायदा नहीं है, ये मुझे अगवा होने से बचा नहीं सकते, मगर डैड नहीं माने। अब उनकी ये
ये गलत फहमी तो लाजिमन दूर हो जाएगी और उसके बाद मेरी भी इन दुमछल्लों से जान छूट जाएगी। अमजद ने कहा, ये न हो तुम्हारे वालिद साहब बॉडीगार्ड्स की तादाद में इजाफा कर दें। वो जल्दी से बोली, अल्लाह न करे, और उसके अंदाज पर हम दोनों मुस्कुरा दिए। उस वक्त तक हम खुश्क बरसाती नाले के किनारे से 50 गज के फासले पर मौजूद दरख्तों के एक बड़े से झुंड, जिसे छोटा मोटा जंगल कहना मुनासिब रहेगा, उसमें दाखिल हो गए थे, जिसकी वजह से रास्ता काफी दुश्वार गुजार हो गया था और मुझे ड्राइविंग करते हुए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उस जंगल में मजीद 10-15 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम एक छोटे से बोसीदा मकान के करीब पहुंच गए। ये जंगल तकरीबन रहमान खेल की हुदूद में ही पड़ता था। जंगल के अंदर 2 कमरों का बना हुआ ये मकान काफी पुराना था। हमारे गांव में उस मकान के बारे में काफी कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग उसे पेशावर के एक पठान से मंसूब करते थे जो अपने इलाके से एक नौजवान लड़की को भगा कर ले आया था। वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे, मगर दोनों के खानदानों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और मोहब्बत किसी दुश्मनी और नफरत को नहीं देखती। उन्हें पता था कि उनके बड़े उन्हें कभी यकजा नहीं होने देंगे, इसलिए वो पेशावर से भागकर उस वीराने में आ बसे। लेकिन अफसोस के जल्द ही लड़की के भाई भी उनकी सुनगुन लेते हुए वहां पहुंच गए और दोनों को वहीं हलाक करके वापस लौट गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो मकान एक शिकारी का था जो किसी नामालूम इलाके से अपनी बीवी के साथ वहां आन बसा था और दोनों मियां बीवी गर्मियों की एक रात भूखे भेड़ियों का शिकार हो गए थे, जबकि कुछ लोग उसे एक पहुंचे हुए बुजुर्ग और उसकी एक मुरीदनी से मंसूब करते थे जो संसार को त्याग कर उस छोटे से मकान में आन बसे थे। बहरहाल असल हकीकत कुछ भी थी। हमारे बचपन में लोग उस मकान को भूत बंगला कहते थे और आज तक वो उसी नाम से मशहूर था और इस निस्बत की वजह से वो सही सलामत खड़ा था, वरना शायद लोग उसकी ईंटें भी उखेड़ कर ले जाते। उसके सही सलामत होने की एक वजह ये भी थी कि वो पुख्ता ईंटों से बना हुआ था। उसके दरवाजे मजबूत लोहे के थे, इसलिए दीमक से महफूज थे। उसी तरह उसकी छत में भी लोहे के पतले पतले मजबूत गार्डर इस्तेमाल हुए थे। हमने रजिया को अगवा करने का मंसूबा बनाने के बाद उसे उसी मकान में रखने का फैसला किया था। इस मकसद के लिए हम गुज़श्ता कल उसकी सफाई करके गए थे। इस तरह खाने पीने का मुख्तसर सा सामान और सोने की जरूरत के लिए फर्श पर बिछाने के लिए चटाई वगैरह भी हमने वहाँ पर रख छोड़ी थी। उस वक्त हम एक लंबा चक्कर काट कर वहाँ पहुँचे थे, वरना रहमान खेल से उसका फासला टोटल 2.5 से 3 किलोमीटर बनता था, इसलिए पैदल शख्स भी आराम से घंटे पौन घंटे में रहमान खेल से वहाँ आ सकता था। उस मकान को पहली नजर देखते ही अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास पैदा होता था, मगर उसके बरक्स रजिया ने उसे देखते ही हाउ स्वीट का नारा बुलंद किया। गाड़ी एक घनी झाड़ी में घुसेड़ कर हम तीनों बाहर आ गए। रजिया के अंदाज और अतवार से बिल्कुल ही ये महसूस हो रहा था जैसे वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक पर आई हो। गाड़ी लॉक करने के बाद हम मकान की समत बढ़ गए। रजिया हमसे भी एक कदम आगे थी। मकान की 4 दीवारी बमुश्किल 6-6.5 फुट ऊंची थी। छोटे से सहन के एक कोने में 2 बोसीदा कब्रें नजर आ रही थी जो उसके मकीनों की थी। नामालूम वो कौन थे, सच्चे आशिक, शिकारी या अल्लाह वाले। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इन 2 कमरों के अलावा एक मुख्तसर सा बरामदा भी था। दोनों कमरों में काठ कबाड़ भरा हुआ था जिसे हम दोनों ने सहन के एक कोने में फेंक दिया था। दोनों कमरों के दरमियान एक छोटा सा दरवाजा भी बना हुआ था। दरवाजे के किवाड़ गालिबन लकड़ी के थे जो दीमक की खुराक बन गए थे। लोहे की जंगालूद चौखट अलबत्ता अभी तक उसी तरह महफूज थी। दरवाजा खोलकर हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, एक नागवार सी घुटन का एहसास हुआ और ऐसा कमरे का बहुत अरसे तक बंद पड़े रहने की वजह से था। अमजद ने जेब से अगरबत्ती का पैकेट निकाल कर जाबजा दीवारों में अगरबत्तियां सुलगा कर लगा दी। जमीन पर बिछी एक चटाई उठाते हुए अमजद ने कहा, मेरा ख्याल है हम थोड़ी देर बाहर सहन में बैठ जाते हैं। मैंने उस बात में सर हिलाया, बिल्कुल, और हम तीनों बाहर आ गए। सहन के अंदर कीकर के एक छोटे से दरख्त के नीचे चटाई बिछाकर अमजद रजिया से मुखातिब हुआ, मैडम बैठने से पहले थोड़ी सी जहमत करेंगी? उसके लहजे में हैरानी थी। क्या? अमजद बोला, अपने पास मौजूद पिस्तौल अगर आप मेरे हवाले कर दें तो। उसके चेहरे पर छाई खुशगवार मुस्कुराहट काफूर हो गई थी। बोली, मेरे पास पिस्तौल कहाँ से आया? अमजद बोला, ये तो मुझे नहीं पता कि पिस्तौल कहाँ से आया, बस आप इतना करें कि चुपचाप अपना लेडीज पिस्टल मेरे हवाले करके हमारे दरमियान होने वाले यकीनी झगड़े को रुकवा लें। उसकी हैरानी बरकरार थी। मैं समझी नहीं, कौन सा झगड़ा? अमजद बोला, लाजमी बात है, तुम्हारी तलाशी लेने के लिए हम दोनों के दरमियान झगड़ा करना नागुज़ीर है, क्योंकि हम में से हर एक की कोशिश होगी कि तुम्हारी तलाशी लेने वाला वो खुद हो और आप हमें इस जहमत से बचा सकती हैं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट रिंग आई, जबकि रजिया ने होंठ भेंचते
कहते हुए अपने गिरबान में हाथ डाला और नामालूम मकाम से एक चपटा सा पिस्तौल निकाल कर अमजद की तरफ बढ़ा दिया। वो हंसते हुए बोला, ये हुई ना ईमानदारी, अब आप तशरीफ रखें। वो बोली, वैसे तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है कि एक निहत्ती लड़की को दो मर्दों ने असलहे के जोर पर काबू किया हुआ है। अगर तुम में थोड़ी सी भी मर्दानगी मौजूद है तो दोनों में से एक मेरे साथ खाली हाथ मुकाबला करे। अगर जीत गई तो मुझे रिहा कर देना, वरना तुम्हारी हर बात बिला चूचरा मान लूंगी। अमजद ने कानों को हाथ लगाया, ना भाई ना, हमने मरना थोड़ी है। वो बोली, बस इतनी ही जुर्रत थी, क्लैशनकोफों के सर पर बदमाश बने फिर रहे हो। अमजद भी लड़ाका औरतों के से अंदाज में तुर्की बतुर्की बोला, तुम कौन सा खाली हाथ हो? वो बोली, मेरे पास फकत पिस्तौल था, वो तुमने ले लिया है, इसके अलावा मेरे पास क्या है? अमजद बोला, सुन रहे हो अब्दुर्रहमान भाई, रजिया बीबी की बातें, ये खुद को निहत्ता समझती है, नजरों के तीर और अदाओं की तलवारें इसकी निगाहों में कुछ नहीं है। वो बोली, हाँ, बुज़दिल बंदा इसी तरह बहाने बनाता है। अमजद ने इस बात में सर हिलाया, सही कहा, और दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। मैं उससे पहले चटाई के एक कोने पर टिक कर बैठ गया था। बादल नखास्ता रजिया भी दूसरे कोने पर बैठ गई। उसका मूड काफी खराब दिखाई दे रहा था। इससे पहले वो इस छोटे से लेडीज पिस्तौल के बलबूते पर पुरुम्मीद थी कि उसे हम पर काबू पाने का कोई मौका मिल जाएगा। इसी वजह से वो हमारी तारीफों के पुल भी बांध रही थी। मगर पिस्तौल हाथ से निकलते ही उसकी शोखी हवा हो गई और हमारी बहादुरी उसे सरासर बुज़दिली दिखाई देने लगी। वो हमें अपने मुकाबले पर भी उकसा रही थी। उसकी वजह इसके अलावा और कुछ नहीं थी कि वो कराटे वगैरह से वाकिफ थी। मगर हम दोनों के पास इन चोंचलों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। कभी मौका आता तो शायद उसे अपने चैलेंज का मौजू जवाब मिल जाता, वरना हम कमजोर और बुज़दिल ही भले थे। मैंने कहा, अब्दुल्ला भाई, मेरा ख्याल है कमरे में जाते हैं, अब अंदर के हालात ठीक होंगे। अमजद ने कहा, चलो, और हम दोनों रजिया को साथ लिए कमरे में घुस गए। अगरबत्ती ने अंदर की घुटन और भूख को काफी हद तक कम कर दिया था। अमजद ने पूछा, खाना गर्म करूं मिस? वो रूखे लहजे में बोली, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। अमजद बोला, ठीक है, आप इधर आराम करें, हम दूसरे कमरे में हैं। और हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। दोनों कमरों के बीच में एक छोटा सा दरवाजा मौजूद था, मगर उसके बावजूद रजिया वाले कमरे का दरवाजा हमने बाहर से बंद कर दिया था। अमजद क्लैशनकोफ दीवार के साथ खड़ी करके चटाई पर लंबा पड़ गया। अब बताओ जानू साहब, क्या इरादा है? मैंने कहा, इरादा क्या यार, तुम अपनी छोटी बीबी का ख्याल रखो और मैं चलता हूँ उस काली वाल के खान साहब के पास, ताकि उससे बिलमुशाफा मुलाकात कर सकूं। वो बोला, तेरी इस बात से जाहिर होता है कि तू आज भी उतना ही गधा है जितना कुछ अरसा पहले था। मैं जवाबन बोला, गधे को यूं भी हर बात में गधापन ही नजर आता है। वो बोला, अगर दिमाग में भूसे के अलावा भी कुछ है और तुम उस पर जोर देने की जहमत भी कर लो तो तुम्हारी समझ में यकीनन ये बात आ जाएगी कि मीर नियाज खान ने सबसे पहले तुम्हें हिरासत में लेकर तुम्हारे साथ वो सलूक करना है जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस वाले भी नहीं कर सके। उसके बाद वो अपनी बेटी का अता पता पूछेगा। मैंने कहा, क्यों, उसे ये डर नहीं होगा कि ये सब कुछ, बल्कि इससे भी कुछ मुख्तलिफ सलूक उसकी बेटी के साथ हो सकता है? वो झल्ला गया, यार कुछ अक्ल से काम लो, उसकी बेटी तुम्हारी कैद में है और तुम खुद उसके हवाले हो जाओ, इस तरह तुम्हारी बर्तरी कैसे कायम रहेगी? मैंने पूछा, तो फिर? वो बोला, क्या इतने बड़े खान के घर फोन नहीं होगा? पूछो जरा बाप की लाडली से फोन नंबर और शहर जाकर पीसीओ से फोन कर लो। मुझे उससे मुत्तफिक होना पड़ा। बात तो तेरी ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेता हूँ। अमजद ने हाँक लगाई, रजिया बीबी, अजी सुनती हो? वो दरमियानी दरवाजे पर नमूदार होते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, हाँ क्या है, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अमजद थूक निकलता हुआ किसी लाचार शख्स की तरह आजिजी से बोला, सॉरी, वो दरअसल आपसे एक काम पड़ गया था। वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाई, तो बताओ ना। अमजद का अंदाज ये ऐसा था कि मुझे भी बेख्तियार हंसी आ गई थी। अमजद बोला, किबला बुजुर्गवार मीर नियाज खान ऑफ कालीवाल अल मारूफ डैडी का फोन नंबर चाहिए था, ताकि मजदूर अपना पसीना खुश्क होने से कबल अपनी मजदूरी तलब कर सकें। वो बोली, हमारे घर में 2 फोन लगे हुए हैं और ये उनके नंबर हैं। उसने दोनों नंबर दोहरा दिए जो मैंने अपने पास नोट कर लिए। मैंने कहा, शुक्रिया मिस, मैं शहर जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो कि लेता हूँ। वो नफी में सर हिलाकर वापस मुड़ गई, शुक्रिया। मैं अपनी जगह से उठते हुए बोला, अच्छा भाई माजे साहब, मैं तो चला। वो बोला, एहतियात से जाना। मैं सर हिलाते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया, मगर बाहर निकलने से पहले मैं एहतियातन दरवाजे से सर निकाल कर बाहर की सुनगुन लेना न भूला था। और ये देखकर मैं उछल पड़ा कि 2 अफराद कंधों से मशीन गन्ने लटकाए बड़ी बेफिक्री से मकान के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।